جب نازل ہوتا ہے بیمار شفا پاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خداوند کے سامنے اٹھے دیں، اپنے دلوں کو خالی کر دیں۔ آج وقت ہے وہ کلام کرے گا اور ہم سنیں گے، وہ بولے گا اور ہم اس آواز کو اپنے اندر لے لیں گے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ اے خداوند خدا، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہے، میری روح تیرے مسکنوں سے گداز ہو چلی ہے۔ جو تیرے گھر میں آتا ہے وہ طاقت کے اوپر طاقت پاتا ہے، وہ شفا پاتا ہے، وہ پہلوان بن جاتا ہے۔ ہاں، داؤد کہتا ہے اے خداوند میں تیرے گھر میں ہرے انجیر کی مانند ہوں۔ اے خداوند تیرے گھر کے اندر ہر کوئی جلال ہی جلال ہی جلال پکارتا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، آج تیرے لوگ کثرت سے اے خداوند خدا تیری حضوری میں آئے ہیں، اپنے دلوں کو خالی کر کے آئے ہیں۔ اے خداوند تو نے یہ بڑا خوبصورت موقع ہمیں بخشا ہے، پہلا دن بخشا ہے، اور پہلے دن میں اے خداوند خدا ہم اپنی تیری حضوری میں اپنی نظروں کو لائے ہیں، منتوں کو لائے ہیں، التجاؤں کو لائے ہیں، درخواستوں کو لائے ہیں، تو قبول کر لینا۔ تیرے خادم کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک بڑا بادل اے خداوند خدا جس کے منتظر ہے وہ خداوند، وہ بادل تیرے خادم پر برسے گا، اور وہ بارش ہمیں بھگو دے گی۔ اے خداوند خدا تو بول اور ہم سنیں گے، ہمارے کانوں کو تیز کر دے، سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرے بن جائے۔ تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو۔ آج دنیا کی ساری فکریں اے خداوند کلام کے وسیلہ سے ختم ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں۔ جب فکروں کی کثرت مجھے یاد دباتی ہے، تیرے کلام کی تسلی میری جان کو شاد کر دیتی ہے۔ آج ہم سب کو شاد کر دینا، تسلی دے دینا۔ تیرا شکر ہو، مسیح یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیا اور پا لیا، آمین آمین۔ بیٹھ جائیے۔ اس وقت ہم خداوند کے کلام کو سنیں گے۔ آئے پاسٹر عمران کو خداوند کے کلام کے ساتھ زوردار ویلکم کریں، تالیاں بجا کر۔ آمین۔ خداوند کے کلام کو زوردار تالیوں میں ویلکم کریں۔ آمین آمین آمین۔ اسلام کی آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج کئی جگہوں کے اوپر چرچز کھلے ہیں، اور بے شک بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی قدم پیچھے رکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ ایک دوسرے کو دلیری دیں، تسلی دیں، اور تاکہ وہ کلیسیا کے اندر جمع ہونا سیکھیں۔ اور آج ایک خاص میسیج ہے اس حوالے سے، اور آنے والے پیریڈ میں جو چرچ کا سیٹ اپ ہے اس کے بارے میں آج ڈسکس کروں گا۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے ہماری دعاؤں کو سنا ہے، اور بہت حد تک ہمارے ملک میں کورونا کا زور ٹوٹا ہے۔ اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں،
اور ضرور ہم یہ مانتے ہیں کہ اس میں بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوا ہے اور ہر ایک شخص متاثر ہوا ہے، اور چرچ کو تو متاثر نہیں ہونا چاہیے، لیکن تو بھی کئی ایسے لوگوں کے ایمان میں تنزلی آئی ہے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ ان کا ایمان بڑھے اور ترقی کرے۔ آمین۔ اس پچھلے ہفتے میں 2 برتھڈیز آئی ہیں، ایک ہماری بہن سسٹر سزانہ کی، ہم ان کو زوردار تالیوں سے ہیپی برتھ ڈے وش کرتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور اپنی بہن سسٹر سائمہ کے لیے ان کی کل برتھ ڈے تھی، خدا آپ کو برکت دے، گاڈ بلیس یو۔ اور سب جن کی اس لاسٹ 28 جولائی کو وہ ہماری بہن سمیرا کی برتھ ڈے تھی، تو تمام برتھ ڈیز کے لیے خدا کا شکر ہو۔ اور اس ویک میں یا پیچھے کس کی برتھ ڈے گزری ہے؟ یہاں کب اس مہینے میں کس کی آنے والی ہے؟ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو زندگی دی ہے، اور اس بڑی تکلیف میں، اس بڑی مصیبت میں جس میں لوگوں کے اندر خوف اور ہراس تھا اپنی زندگیوں کی بابت، لیکن خداوند نے زندگی دی، نئے سال بخشے ہیں، برتھڈیز دی ہیں، اور خوشی اور شادمانی سے معمور کیا ہے۔ اس لیے خدا کا شکر ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت عطا کرے۔ دا بریکر انوائنٹنگ، ہمارا سبجیکٹ جو سٹارٹ ہوا ہے وہ کیا ہے؟ دا بریکر انوائنٹنگ۔ اور میکا کی کتاب میرے ساتھ نکالیے، جو بنیادی اور مرکزی آیت ہے، 2 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ لکھا ہے، توڑنے والا ان کے آگے آگے گیا ہے، وہ توڑتے ہوئے پھاٹک تک چلے گئے اور اس میں سے گزر گئے، اور ان کا بادشاہ ان کے آگے آگے گیا، یعنی خداوند ان کا پیشوا۔ توڑنے والا ان کے آگے آگے گیا ہے۔ کون گیا ہے؟ توڑنے والا ان کے آگے آگے گیا ہے۔ پھر جو فالوورز ہیں ان کے حوالے سے لکھا، وہ توڑتے ہوئے پھاٹک تک چلے گئے اور اس میں سے گزر گئے، ان کا بادشاہ ان کے آگے آگے، یعنی خداوند ان کا پیشوا۔ تو آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ توڑنے والا کیا ہے؟ ان کے آگے آگے گیا ہے، بریکر۔ اور میں یہ بتا چکا ہوں کہ یسایا کی کتاب میں جیسا کہ لکھا ہے کہ وہ جوا مسا کے سبب سے کیا ہوگا؟ توڑا جائے گا۔ کوئی بھی چیز کو توڑنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ خداوند انوائنٹنگ کو، مسا کو استعمال کرتا ہے۔ اور توڑنے والا کون ہے؟ ہمیں ملتا ہے ہمارا بادشاہ، ہمارا خداوند، ہمارا پیشوا۔ لاسٹ ٹائم میں اس کے اوپر جو آپ کو انٹروڈکٹری جو ہے یہ سارا بتا رہا تھا بریکر کے حوالے سے، کہ توڑنے والا جب آگے آگے ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھاٹک ٹوٹیں گے۔ دشمن جہاں پر قابض ہے، دشمن جہاں پر حکمرانی کرتا ہے، اور اپنا وہاں پر اپنے اسٹرانگ ہولڈز بنائے ہوئے ہیں، جس کے سبب سے ہر طرح کی رکاوٹ اور ہر طرح کا جوا اور بندھن پڑا ہوا ہے، اور یہ اسی وقت ٹوٹ سکتا ہے جب بریکر آگے ہوگا، اور دین انوائنٹڈ لوگ آگے بڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ خدا کا جلال ظاہر ہوگا اور پھاٹک آزاد ہوں گے، اور جو ہے اندر تک جو ہے لوگ جائیں گے۔ میں یہ بھی بتا رہا تھا کہ جب آپ بریکر انوائنٹنگ کو اپنی زندگیوں کے اندر لیں گے، اس کے ذریعے سے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا براہ راست آپ کے شہروں، آپ کے ارد گرد کے گرد و نواح میں، اور پھر
मुल्कों के ऊपर, कौमों के ऊपर और चर्चेस के ऊपर इसका असर जाएगा। आमीन। क्योंकि जो मीका की किताब में हमने जिक्र पढ़ा है कि वो फाटक में से गुजर गए हैं, लिहाजा जितनी भी टेरिटरीज हैं जहां पर अबलीस का कब्जा है, जहां पर दुश्मन चढ़ा हुआ है और वहां से निकल नहीं रहा है, और इतने जतन करने के बावजूद भी, तो फिर क्या कर जरूरत है? तोड़ने वाले की जरूरत है। आमीन। और आज जो जिसके तलक से मैं आज जिक्र करने जा रहा हूं वो है रेस्टोरेशन ऑफ अपोस्टोलिक चर्च, रसूली कलीसिया की बहाली। क्या है? रसूली कलीसिया की बहाली। और मैं आपको इस जगह के ऊपर खड़ा करना चाहता हूं और ये आपका माइंड खोलना चाहता हूं कि खुदा ब्रेकर इनॉन्टिंग के जरिए से क्या करना चाह रहा है और क्या होने जा रहा है। आमीन। बाज दफा बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे और सोचते भी हैं कि कलीसिया कमजोर हो रही है, या कमजोर हो गई, या कमजोर हो चुकी। तो आज इस सरमन के जरिए से हमारे अंदर ये दिलेरी भी आएगी कि ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि खुदा ऐसी कलीसिया को बहाल करने जा रहा है जो उसके अकॉर्डिंगली है। आमीन। और वो कौन सी कलीसिया है? वो अपोस्टोलिक चर्च है, यानी रसूलों की कलीसिया, जो हमें ईमाल की किताब में हमें मिल रही है। और मैं ये समझता हूं कि ये खास और अच्छे दिन हैं जिनमें खुदा नए अहदनामा की कलीसिया को दोबारा बहाल करने जा रहा है। आमीन। जिसके बारे में हमें ईमाल की किताब में मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। लिहाजा अगर आज भी हम ये सोचें कि आज अगर हम एक खुदावन के घर में जमा हुए हैं तो हमें कैसी खुशी और कैसी शादमानी मिलती है या मिली है, तो गोया इसका मतलब ये हुआ है कि जब अपोस्टोलिक चर्च यानी रसूलों की कलीसिया जो हमें ईमाल की किताब में मिलती है वो बहाल हो, तो फिर क्या कुछ होगा। आमीन। और आपको बताऊं कि रसूलों की कलीसिया या रसूली कलीसिया वो इसी दौरे हाजरा में जो है ये बहाल होने जा रही है। आमीन। अगरचे वो कल्चरली या तहजीबी या माशरती तौर पर उस जैसी तो नहीं है जैसे हमें ईमाल की किताब में कलीसिया नजर आती है, जहां पर जो है सारे रसूल थे, पौलुस रसूल और उनके चर्चेस थे, वैसी तो नहीं उस तहजीबी एतबार से। लेकिन जब हम उनकी कुव्वत, उनका जोर, रूहुल कुदस की मामूरी, रूहुल कुदस का जो है अपना कह लीजिए कि उसकी जुम्बश और ताकत और हिकमत और सरगर्म करने वाली कुव्वत जो ईमाल की कलीसिया के अंदर मिलती है, वैसे ही कलीसिया जो खुदा बहाल करने जा रहा है, वैसी ही हिकमत, वैसी ही कुव्वत और वैसी ही सरगर्म पुरजोश करने वाली ताकत जो रूहुल कुदस की वसीले से उनको हासिल हुई, वैसे ही खुदा कलीसिया के अंदर करने जा रहा है। आमीन। और ये बहाली चर्च को इस जगह के ऊपर खड़ी कर देगी कि वो आगे बढ़ सके और आगे तरक्की कर सके। आमीन। और इस कलीसिया को जो है थर्ड डे चर्च हम उसे कहते हैं। कौन सा चर्च? थर्ड डे चर्च। बहुत सी कौमों और दुनिया के अंदर और जो हमारे बड़े जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो इन बातों के ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि रसूली कलीसिया जो है वो बहाल होने जा रही है। आमीन। इसके ऊपर गुफ्तगू भी हो रही है और इसके ऊपर किताबों की राइटिंग्स भी मौजूद है और लिखी जा रही है कि खुदा बड़ी जल्द जो है कलीसिया को दोबारा से उसी जगह के ऊपर खड़ा करने जा रहा है। आमीन। और ये बहाली उसको उस सारे दबाव को जो चर्च के ऊपर पाया जाता है उसमें से उसे निकालेगी और उसको ये जुर्रत बख्शेगी कि वो खड़े हो जाए और पुरजोश और रूहानी ताकत से बढ़कर जो है वो आगे क्या कर सके, मूव कर सके। आमीन। और मैं ये समझता हूं कि इस दौर में
चंद दुहाइयों में जो चर्च उस तौर पर जो है वो बूस्ट नहीं कर पाया, या उस तौर पर जो है वो तरक्की नहीं कर पाया। जो आने वाले दिनों में जो है कलीसिया को खुदा जो है वो बहाल करने जा रहा है। आमीन। इसको मैंने पहले बता चुका हूं कि इस थर्ड डे चर्च कहा जाता है। खुदा के अजीम के खादमीन इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, और चक डी पेरिस जो है ये खादम जो है वो अमेरिकन है, उसने भी अपनी किताब में इसे थर्ड डे चर्च का नाम दिया है। और उसने इसको होसिया की किताब उसके 6 बाब और उसकी पहली 2 आयत में से इसका जिक्र किया है कि थर्ड डे चर्च कैसा होगा। और वो बयान हमें होसिया की किताब में 6 बाब में हमें जिक्र मिलता है। मेरे साथ निकालिए 6 बाब और उसकी पहली 2 आयत। लिखा है, आओ हम खुदावंद की तरफ रजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा। उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। वो 2 रोज के बाद हमको हयात ताजा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा और हम उसके हुजूर जिंदगी बसर करेंगे। आमीन। क्या हमें बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि आओ हम खुदावंद की तरफ रजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा। उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। लिखा है वो 2 रोज के बाद हमको हयात ताजा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा और हम उसके हुजूर जिंदगी बसर करेंगे। हम ये जानते हैं कि जब दूसरा 1000 साल चला तो खुदा ने जो है मार्टिन लूथर को क्या किया है, इस्तेमाल किया और चर्च को रिस्टोर किया। आमीन। जिसकी बाबत यह लिखा है कि वो दूसरे रोज हमको हयात ताजा बख्शेगा। कलीसिया जो है वो जब स्टार्ट हुई और एक पहले 1000 में क्या हुई, एकदम से वो डाउन चले गई। जब जो है ये अपना डार्क पीरियड एकदम से कलीसिया के ऊपर गुजरा। लेकिन जो है दूसरे 1000 में क्या हुआ कि कलीसिया को खुदा ने जो है मार्टिन लूथर के जरिए से जो है वो रिस्टोर किया। जब उसने प्रोटेस्टेंट रेस्टोरेशन का जो है वो तहरीक को जो है वो चलाया है। आमीन। उसने दोबारा चर्च को दोबारा जो है वो जिंदगी की तरफ, हयात ताजा की तरफ, ताजगी की तरफ जो है वो मूव किया। एक दफा कलीसिया जो है वो बिल्कुल डाउन हो गई। कलीसिया बिल्कुल मैं समझूं कि वो मर गई, लेकिन क्या हुआ कि खुदा ने रिस्टोर किया है। हालेलुया। सो इसी वजह से जो है आज हमारे पास ये बाइबल मौजूद है और चर्च जो है वो उस बड़े जो है तारीकी में से निकला और जो है वो बहाल हुआ। लेकिन ये सिर्फ काफी नहीं था कि वो दूसरे 1000 में कलीसिया जो है वो स्टैंड कर गई, नहीं, बल्कि जैसा कि यहोशिया ने कहा है कि वो क्या करेगा, तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा। आमीन। इस कलीसिया का तीसरा दिन स्टार्ट हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। और जब रेस्टोरेशन हुई, जब असलाह का काम हुआ, जो मार्टिन लूथर और आगे जितने भी लीडर्स जो है ये दूसरी सदी के अंदर, दूसरी 1000वें साल के अंदर, सेकंड मिलेनियम के अंदर आए हैं, उन्होंने कलीसिया को जो है हयात ताजा बख्शी। और जब आप जो है वो चर्च हिस्ट्री का जो है वो मुताला करें, आपको इल्म होगा कि किस तौर पर चर्च है वो किस तौर पर जो है डॉन था और किस तौर पर दोबारा से जो है रिफ्रेश हुआ और वो ताजा हुआ, उसे हयात ताजा मिली, उसे फिर से जो है वो खड़ा होने के काबिल हुआ। तो वो जो है हमें फिर एक चर्च की एक नई लहर जो है वो पूरी दुनिया के अंदर हमें दिखाई दी है। अब कलीसिया का तीसरा 1000वां साल चल रहा है, जिसे हम थर्ड डे चर्च कहते हैं। आमीन। और उस वक्त जो है चर्च के अंदर ताजगी आई, तब्दीली वकू में आई, लेकिन अब तीसरे 1000 में हम दाखिल हो चुके हैं। आमीन। चुनांचे क्योंकि जब हम क्राइस्ट की पैदाइश से लेते तो उस वक्त तक ये जो है दौर कौन सी सदवी चल रही, कौन सा 1000वां चल रहा है,
थर्ड डे मूव होना शुरू हो चुका है। और थर्ड डे चर्च में जिसका अभी मैं जिक्र कर रहा हूं वो क्या है कि वो क्या करेगा, तीसरे दिन में जो है तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा और हम उसके हुजूर जिंदगी बसर करेंगे। आमीन। लिहाजा जब चर्च स्टार्ट हुआ, जब रसूली कलीसिया ने आगाज किया, जब रसूलों ने आगाज किया, तो तमाम टेरिटरीज के अंदर, तमाम इलाकों के अंदर, तमाम कौमों के अंदर, तमाम मुल्कों के अंदर खुशखबरी का कलाम जो है वो बड़े जोर के साथ फैल गया। लेकिन एक दम से जो है आप देखते हैं कि किस तौर पर जो है कलीसिया जो है 5वीं सदी से डाउन होती चली गई, और जब 17वीं सदी के अंदर जाकर 16वीं 17वीं सदी में जब मार्टिन लूथर जैसे लोग उभरे तो कलीसिया को खुदा ने क्या किया है, हयाते ताजा बख्शी है। लेकिन सोचिए तीसरे दिन क्या वो क्या करेगा, आमीन, तीसरे दिन वो उठा खड़ा करेगा। आमीन। तीसरे दिन वो क्या करेगा और हम उसके हुजूर जो है वो जिंदगी बसर करेंगे। लिहाजा जो है ये 2000 साल जब गुजर गए और अब कौन सा हजारवां साल चल रहा है, तीसरा हजारवां साल चल रहा है। लिहाजा इसका मतलब यह है ये थर्ड डे चर्च जो है वो अपना क्या हुआ है, स्टार्ट हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरे दिन वो क्या करेगा, उठा खड़ा करेगा। और चर्च का ये तीसरा दिन है जिसमें रसूली इख्तियार और असर की बहाली होगी। आमीन। जिस पर रसूलों का इख्तियार और जिस पर रसूलों के जो है वो असर हम जो है वो इब्तदाई कलीसिया के अंदर या रसूली कलीसिया के अंदर, अर्ली चर्च या अपोस्टोलिक चर्च या रसूली कलीसिया जिसे हम कहते हैं, वो हमें नजर आता है। और आप देख सकते हैं यरूशलेम की कलीसिया का हाल, आप अंताकिया की कलीसिया का हाल, और फिर जो है पौलुस रसूल के मिशनरी जो है वो टूवर्स, और ये किस तौर पर जो है वो मिरेकल्स, किस तौर पर निशानात, किस तौर पर जो वंडर्स, किस तौर पर तब्दीली, किस तौर पर जो है वो गॉस्पेल की प्रीचिंग या तबलीग का काम वो कितनी जोरों के ऊपर होना शुरू हुआ है। लिहाजा अब चर्च को जो है बड़ा जो है ध्यान के साथ और बड़े जोर के साथ जिंदगी बसर करने की जो है जरूरत है। अब तैयार हो जाएं क्योंकि खुदावन अब की बारी उठा खड़ा करने को जा रहा है। हालेलुया। इस तीसरे दिन के जो चर्च है, थर्ड डे चर्च है, वो कैसा होगा, बड़ा बहाल शुदा होगा, रिस्टोर्ड होगा, जिसमें रसूलों का सा इख्तियार, जिस पर रसूलों की सी जो है ताकत, कुव्वत और असर जो है वो हमें नजर आना वो शुरू हो जाएगा। लिहाजा जो चर्च के लिए एक जबरदस्त उम्मीद बाकी है जो मैं यूं कहूंगा कि ये स्टार्ट हो चुकी है। आमीन। और जो है 20 साल इस तीसरे दिन को हो चुके हैं, यानी थर्ड मिलेनियम को ये 20 साल जो है वो हो चुके हैं। तो सोचिए कि अगले जो 80 बरस हैं वो कैसे जबरदस्त होंगे। तो गोया जो है आने वाली जनरेशन के ऊपर जो है कैसा बड़ा असर जो है खुदा जो है अपने पाक रूह की कुदरत से दिखाने जा रहा है। आमीन। इसकी नबूवती तस्वीर जो है जो हमें होशिया की किताब के अंदर नजर आती है, आप हिजकिय्याल 37वें बाब के अंदर भी इसका मुताला कर सकते हैं कि किस तौर पर खुदा रिस्टोर करने जा रहा है। हालेलुया। और इसमें जो है खुदा ने हिजकिय्याल को ये कहा था और वो ये बात बताई थी कि किस तौर पर खुदा जो है वो काम करने जा रहा है। और बड़ी बहाली का एक वाकया, एक तस्वीर हमें जो है वो नजर आती है जब आप हिजकिय्याल की किताब उसका 37वां बाब पढ़ते हैं। और खुदा ने जो है हिजकिय्याल को हड्डियों से एक वादी दिखाई जो हड्डियों से पूरी थी। कहता है कि खुदा ने मुझे जो है उस वादी में जो हड्डियों से पूरी थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फिराया
और देख वो वादी के मैदान में बकसरत और नहायत सूखी थी, ड्राई थी। और उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ऐ खुदावंद खुदा तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू हड्डियों पर नबूवत कर और उनसे कहा, क्या ऐसू की हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। और खुदावंद खुदा उन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा, और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम्हें दम फूंकूंगा, और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूं। प्रेज द लॉर्ड। और आप ये देखिए कि किस तौर पर वहां पर नबूवत हुई, और वो क्या हुई, जब उनके ऊपर चमड़ा जब चढ़ना शुरू हुआ, नसें चढ़ना शुरू हुई है, और चमड़े की पोशिश होना शुरू हुई है, नसें और गोश्त उन पर चढ़ना, उन हड्डियों के ऊपर जो है नसें और गोश्त चढ़ना शुरू हुआ, और उनके ऊपर चमड़े की पोशिश होना शुरू हो गई, पर उनमें दम नहीं था। लेकिन जब फिर से चारों तरफ से दम आया, बाइबल मुकद्दस फरमाती है, और जो है खुदा ने कहा, तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर। तो आगे लिखा है, तू हवा से नबूवत कर, ऐ आदमजाद। और हवा से क्या, खुदा यूं फरमाता है कि आदम तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाए। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वह जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है आगे, एक नहायत बड़ा लश्कर। आमीन। कौन सा बड़ा लश्कर? एक नहायत बड़ा लश्कर है। इट इज द आर्मी ऑफ गॉड अराइजिंग। आमीन। कि खुदा की आर्मी, खुदा का लश्कर, एक बहुत बड़ा लश्कर जो है वो रिस्टोर हुआ है। आमीन। जिसको हिस्कियल को जो है वो तस्वीर दिखाई गई है। लिहाजा खुदा भी ऐसा करने जा रहा है। ये इस्राएल के हवाले से भी है, और फिर जो है ये रेस्ट्रिक्शन के हवाले से, जहां पर रेस्ट्रिक्शन की जरूरत होगी या देखी जाएगी, तो ये हिस्कियल 37 चैप्टर इस बात की गवाही है कि वो किस तौर पर रिस्टोर होता है। कलीसिया भी इस तौर पर रिस्टोर होने जा रही है, जिसमें क्या होगा, एक बड़ा लश्कर, एक बड़ी आर्मी जो है वो बनने जा रही है। हालेलुया। आमीन। लिहाजा थर्ड डे चर्च एक आर्मी चर्च है, एक लश्कर है, जिसके जरिए से खुदा अपने बड़े काम को करने जा रहा है। और ये उन तमाम जो है वो बंधनों और उन तमाम जो है वो आप कह लीजिए जुओं से आजाद है, और इसके अंदर जुर्रत है। और आप ये देखते हैं कि आज की जो है चर्च के अंदर जो है हमें ये तजर्बा है कि लोगों ने जो है माशरती एतबार से, तहजीबी एतबार से जो है कलीसिया उसके माइंडसेट को अपनाया हुआ है। जैसा माशरा, जैसी तहजीब और जैसा तौर तरीके कलीसिया जो है माशरों के अंदर पाए जाते हैं, वो उसके दबाव का शिकार है। लेकिन थर्ड डे चर्च जिसको खुदा जो है रिस्टोर करने जा रहा है, वो कैसी होगी? वो बड़ी दलेर होगी, और ऐसी होगी जिसमें रसूल अपने नबियों के साथ, उस्तादों के साथ, चरवाहों के साथ, मुबश्शिरों के साथ, मददगारों के साथ और तमाम जो है मुंतजमीन के साथ जो है वो काम करते हुए दिखाई देंगे। आमीन। जो हमें दूसरे ग्रंथियों के अंदर भी इसकी हमें तालीम मिलती है कि किस तौर पर जो है खुदा ऐसी कलीसिया को जिसमें रसूलों का सा इख्तियार हो, और जिसमें जो है हमें कलीसिया के अंदर जो है उस्ताद, चरवाहे और मुबश्शिर और ये सारे जो मौजज़े करने वाले और शिफा देने वाले मुंतज़मीन और मददगार आपको नजर आएंगे। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि खुदा एक बड़ा काम करने के लिए जो है वो तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। रेस्टोरेशन फॉर अपोस्टोलिक चर्च, जो हमें ईमान की कलीसिया के अंदर जो तस्वीर हमें नजर आती है, उसे कई गुना ज्यादा खुदा आज की कलीसिया के अंदर करने जा रहा है, और इसके लिए आपको तैयार होना बहुत जरूरी है। खुदा जो है वो मैंडेट जो कलीसिया का है, जो रसूली कलीसिया का मैंडेट है, जो आज आपको
جو ہے جب بہت ساری چرچز اور بہت سارے ملکوں کے اندر دیکھتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے. خدا اس مینڈیٹ کو، اس کمیشن کو، اس آرڈر کو، اس جو ہے طریقے کو جو ہے کلیسیا کے اندر ایمان کی کتاب کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، وہ رسولوں، نبیوں، استادوں کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے. خدا چرچ کی اصلی حالت وقوع میں لانے والا ہے. آمین. یہ پہلا کرنتھیوں اس کے 12ویں باب اس کے 28ویں آیت میں ہے کہ خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے. پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر معجزے دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، مددگار، منتظم اور طرح طرح کی زبانیں بولنے والے. لہذا جب جو ہے رسولی اختیار اور انتظام قائم ہو جاتا ہے تو پھر معجزے اور شفائیں وقوع میں آنا شروع ہو جائیں گے. آمین. اور میں یہ آپ کو خوشی کی بات بتاتا ہوں، بہت سارے ملکوں اور قوموں کے اندر جو ہے یہ جو ہے اپوسٹولک جو ہے وہ نظام جو ہے وہ وقوع میں آ رہا ہے اور کئی جگہوں کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن ہے. اور ہمارے ملک کے اندر بھی یہ جلد وقوع میں آنے جا رہا ہے. ہاللیلویا. اور آپ اس کو کسی بھی انداز میں میری اس بات کو نوٹ کر لیجئے. آج خدا یا کلیسیا کی بحالی اور اس کا پورا مینڈیٹ جو ہے وہ بخشنے والا ہے. آمین. یہ ہول پورے چرچ کو یہ تازگی ملنے جا رہی ہے، بلکہ تھرڈ ڈے چرچ کو وہ کھڑا کرنے والا ہے. آمین. اور اس کو جو ہے زندگی بخشنے والا ہے تاکہ ہم اس میں زندگی بسر کر سکے. ایک ایسا لشکر کو وہ تیار کرنے جا رہا ہے جو کھڑا ہوگا، جو ہے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہوگا تاکہ کیا کر سکے، جو ہے وہ گوسپل کو پریچ کر سکے. اور اس کا جو ہے آپ یہ پھر دیکھیں گے کہ کس طور پر جس طور پر رسول نکل گئے، جس طور پر جو ہے انہوں نے جو ہے ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، روکتے تھے تو زیادہ پھیلتے تھے. یہی کچھ جو ہے آنے والے سالوں کے اندر خدا کرنے جا رہا ہے. تو کلیسیا کو یہ تعلیم دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنا مائنڈ جو ہے وہ اس کے بارے میں سیٹ کرے کہ کیا رسولوں کا جو ہے معیار یا رسولوں کا مینڈیٹ جو ان کو حاصل تھا وہ، یا وہ ایسی کلیسیا جو ابتدائی کلیسیا کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، کیا ایسی کلیسیا پھر سے جو ہے یہ جنم لینے والی ہے یا جنم لے گی؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. جس طور پر جو ہے انہوں نے علاقائی طور پر جو ہے پھیل گئے اور ہر ٹیریٹریز کے اندر نکل گئے، خدا ایسا کرنے جا رہا ہے. اور وہ نشوونما پاتے چلے گئے، ایسی نشوونما ہونے جا رہی ہے. اور انہوں نے اب آسمان کی بادشاہی کے کام کو وسعت دینا شروع کر دی. آج یہ سرمن دینے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ اپنا مائنڈ کھولیں کہ ہم کس مینڈیٹ، کیسا مینڈیٹ رکھتے ہیں. آپ یہ مینڈیٹ ورڈ جو ہے نا آپ ہماری پارلیمنٹ کے اندر بہت زیادہ سنتے ہیں کہ یہ جو مینڈیٹ ہمیں ملنا چاہیے تھا، جو کمیشن، جو ہمیں اختیار ملنا چاہیے تھا، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. دیکھیے خدا ایسا اختیار ہمیں دینے جا رہا ہے. اس کی شکل میں آپ کو بتاتا ہوں. دراصل عزیز بہنوں بھائیوں، خدا نے شروع ہی سے اپوسٹولک جو ہے اتھارٹی جو ہے وہ انسان کو دی تھی. وہ اختیار جس کے ذریعے سے جو ہے سب چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، وہ پہلے دن ہی سے خدا نے جو ہے وہ انسان کو دیا تھا. اپوسٹولک اتھارٹی جسے ہم کہتے ہیں، رسولی جو ہے وہ مائنڈ یا رسولی اختیار خدا نے پہلے ہی سے دیا تھا. اور یہ آپ کو باغ عدن میں بھی ملتا ہے. معلوم ہے آپ کو باغ عدن میں کیا ہوا تھا؟ خدا نے آدم اور حوا کو کیا کہا تھا؟ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے اور خداوند نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. خدا نے نسل انسانی کو رسولی لوگ ٹھہرایا تھا. آمین. کون سے لوگ؟ اپوسٹولک پیپل. کیسے لوگ بنایا تھا؟ رسولی لوگ تھے. یعنی آدم اور حوا کیسے لوگ تھے؟ اپوسٹولک لوگ تھے. جیسے کہ وہ کیا کہہ رہے؟ بڑھو
پھلو بڑھو اور زمین کو کیا کرو؟ معمورو محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ ایک مسیحی کی بھی ایسی ہی فطرت ہونی چاہیے جیسے خدا نے باغ عدن میں آدم اور حوا کو وہ دی ہوئی تھی۔ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہمیں زندگی بسر کرنے کی وہ ضرورت ہے۔ کیا؟ وہ کہ کیسے پھل لائیں، کیسے بڑھے، کیسے زمین کو معمور و محکوم کرے اور سب چیزوں کو اوپر اختیار رہیں۔ بلکہ اس پر یوں کہا جائے تو یہ مناسب ہے، میں کہوں کہ دراصل خدا نے باغ عدن میں اس کو یہ اختیار دیا کہ وہ سب چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کرے، لیکن اب چرچ یا کلیسیا یا مسیحی وہ کس طور پر وہ اس کے اوپر اختیار رکھ سکتا ہے یا دکھا سکتا ہے؟ گویا جب وہ آسمان کی بادشاہی کو وسعت دیتا چلا جاتا ہے یا اسے بڑھاتا چلا جاتا ہے تو یوں وہ اس اختیار کو زمین کے اوپر قائم کرتا ہے۔ آمین۔ لہذا آپ کو یہ مائنڈ سیٹ بنانا ہوگا، ہر چرچ ممبر کو یہ مائنڈ سیٹ بنانا ہوگا۔ کیا مائنڈ سیٹ؟ کہ میں نے اس کو پھلنا ہے، بڑھنا ہے اور زمین کو معمور و محکوم کرنا ہے، یعنی میں یہ کرسٹ پر آسمان کی بادشاہی کو وسعت دینی ہے، کیونکہ جب کرائسٹ آیا وہ اسی بات کے اوپر زور دے رہا تھا۔ رسولوں نے کیا کام کیا ہے؟ رسولوں نے وہ ملکوں میں، قوموں میں، علاقوں میں گئے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ کیا وہ پولیٹیکلی یا وہ ان کے اوپر وہ بادشاہ بن بیٹھے یا ان کے اوپر چڑھ گئے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے آسمان کی بادشاہت کی وسعت کو بیان کیا۔ دوسرے معنوں میں انہوں نے آسمان کی بادشاہی کے پیغام کو عام کر دیا، تاکہ اس دنیا کو اگر ہم مغلوب کر سکتے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یسوع مسیح کی خوشخبری کے کلام کے وسیلے سے ہم اس مینڈیٹ کو قائم کر سکتے ہیں۔ آمین۔ اور پھر آپ کو پتا ہے اپوسٹلز کا کیا مطلب ہے؟ رسول کا کیا مطلب ہے؟ بھیجا جانے والا، ٹھیک ہے، بھیجا گیا، ٹھیک ہے، اسینٹ ون جس کو بھیجا گیا ہے۔ لہذا ہمیں مسیح ہونے کے لیے بھیجا گیا ہے اور ہمیں کلیسیا کے اندر رکھا گیا ہے۔ ہر ایک کلیسیا کا ممبر جو یہاں پر موجود ہے اور جو گھر میں بھی موجود ہے، اس کے پاس یہ مینڈیٹ حاصل ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے کہ وہ بڑے پھلے اور کیا کرے؟ زمین کو معمور و محکوم کرے۔ اور کس سینس کے اندر مسیحی کر سکتا ہے؟ مسیح کی خوشخبری کے ذریعے سے علاقوں کے اندر پھیل جائے۔ آمین۔ اور اسی بات کے اوپر جس کے اوپر میں بریکر اناؤنٹنگ سنا رہا ہوں کہ کس طور پر یہ کام ہو سکتا ہے۔ جب تک آپ اپنا مائنڈ سیٹ وہ نہیں بدلیں گے تب تک بریکر اناؤنٹنگ آپ کی زندگیوں کے اندر کام نہیں کرے گی، اور یوں علاقوں کے اندر، گھروں کے اندر آپ کے ارد گرد میں خوشخبری کا کلام وہ نہیں پھیل سکتا ہے۔ بریکر اناؤنٹنگ کے ذریعے سے ہی کیا ہوگا؟ کلیسیوں کے اندر وسعت آ سکتی ہے، علاقوں کے اندر وسعت آ سکتی ہے۔ لہذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری کلیسیا یا ہم میں سے ہر ایک شخص وہ نکلے اور وہ قائم ہو، بڑے پھلے ترقی کرے اور زمین کو معمور و محکوم کرے، اس کالونی کو اور جہاں جہاں پر ہمارے پاؤں کا تلوہ جاتا ہے اس کو معمور کر دے، اسے محکوم کر دے، وہاں پر بڑھے، وہاں پر نشوونما ہو، تو اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ We need the breaker anointing۔ کیوں؟ کیونکہ توڑنے والا آگے آگے جاتا ہے، وہ پھاٹک میں سے گزر گئے اور وہ اس میں پھاٹک میں سے گزرے، اس میں داخل ہوئے اور اس میں سے گزر گئے۔ لہٰذا یہ چرچ ہے جس کے ذریعے سے اگر یہاں پر اپوسٹولک مینڈیٹ قائم ہو جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ کلیسیوں کے اندر وسعت آنا شروع ہو جائے گی۔ آمین۔ اور یاد رکھیے ایسا دن جیسے میں بتا چکا ہوں آنے والا ہے، اور ایسی نسل وقوع میں آنے والی ہے۔ آمین۔ ایسی جنریشن جو پورے زور اور شور کے ساتھ خدا کے کلام کو اور خدا کی خوشخبری کو سنانے کے لیے بالکل ریڈی ہوں گے۔ آمین۔ کیا آپ اس میں شامل ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں،
अगर आप चंद दहाइयां पीछे चले जाएं तो आपको शायद मालूम हो कि बहुत कम लोग थे कि जो ना होने के बराबर थे, कि छोटे बच्चे भी क्या वो आयास ना सकें या वो पुरिश कर सकें या वो जो है उनको तो सही तौर पर गुफ्तगू करना भी नहीं आती थी। बड़े भी इस लेवल के ऊपर नहीं थे, लेकिन जो है कुछ आप तब्दीली देखेंगे और आने वाले दिनों में ये बढ़ती चली जाएगी। आमीन। और जो तरीकाकार यीशु मसीह ने जो है वो खुशखबरी सुनाने का बयान किया है, वो मत्ती की इंजील 11वां बाब और उसकी 12वीं आयत में है, और लिखा है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है और जोरावर उसे छीन लेते हैं। आमीन। जोरावर क्या करते हैं वो, और इसके लिए ये भी मिला है, ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल। आमीन। कौन से लोग छीन लेते हैं? ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल। प्रेज़ द लॉर्ड। लिहाजा एक ग्रुप पैदा होने जा रहा है, एक लश्कर, जो कौन सा है? एंग्री पीपल। वो बादशाही को कैसे छीन लेंगे? जोरावर उसे क्या करते हैं? वो छीन लेते हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये किस तरह से ये ऐसा होगा? ये ब्रेकर इनॉन्टिंग के जरिए से होगा, ये तोड़ने वाले के मसा के सबब से होगा। जब बादशाही को जोरावर तरीके के साथ छीना जाएगा और इब्लीस के हाथों से भाइयों को, बहनों को, औरतों को, मर्दों को, कौमों को, मुल्कों को, शहरों को, देहातों को, कस्बों को और इन जो है इलाकों को जो हमारे चौगिर्द हैं, जिसको इब्लीस से बांधा हुआ है, वो क्या होगा? वो इन एग्रेसिव लोगों के जरिए से क्या करेंगे? वो छीन लेंगे। हालेलुया। लिहाजा अगर हम अपनी जिंदगियों के अंदर एक बड़े काम को करने के लिए या तैयार होना चाहते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत है? खुशखबरी और निजात के काम को आम कर देना चाहते हैं। खुशखबरी और निजात के काम को आम कर देना चाहते हैं और इलाकों से इब्लीस की ताकतों को और उसके कब्जों को छुड़ा देना चाहते हैं। तो ये कौन कर सकता है? ये रिस्टोर्ड अपोस्टोलिक चर्च कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। ये जो है ये रसूली कलीसिया, बहाल शुदा रसूली कलीसिया ये काम कर सकती है। ब्रेकर इनॉन्टिंग उनकी जिंदगियों के अंदर काम करेगी और वो इलाकों के अंदर जो है वो अपने कदम जमाएंगे और वहां पर जो है वो वहां पर इब्लीस की कुव्वतों को जो है वो भगा सकेंगे। ये हर एक मसीही भी कर सकता है। आमीन। क्योंकि हमारा जो दायराकार है वो वसी है। हम कई जगहों के ऊपर उड़ते और बैठते और आते और जाते हैं। और अगर आपने ब्रेकर इनॉन्टिंग को अपनी जिंदगी के अंदर दावत दी तो मैं आपको हकीकत बताता हूं कि अगर आप इस इलाके से दूसरे इलाके में चले जाएं, आप इस शहर से दूसरे शहर में चले जाएं, अगर आप एक जॉब से दूसरी जॉब पर चले जाएं, आप एक घर से दूसरे घर में चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? आप खुशखबरी और निजात के काम को आम करने वालों में शामिल हो सकते हैं। आमीन। क्या आप तैयार हैं? क्या आप जो है वो तोड़ने वाले के पीछे चलें? जब तक तोड़ने वाला आपके आगे नहीं जाता है आप फाटक में दाखिल नहीं हो सकते हैं। आप जो है वो उसमें से गुजर नहीं सकते हैं। जब तक वो पेशवा नहीं है तब तक ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा मैं चर्च को ये नसीहत करना चाहता हूं और ये मेरी ख्वाहिश होगी कि हम रिस्टोर कलीसिया का हिस्सा हो, हम इस लश्कर का, इस आर्मी का हिस्सा हो जो रूहों को जीतने वाली हो, जो रूहों को बचाने वाली हो। आमीन। क्या आप मेरे साथ मिलकर जो है इस कलीसिया का हिस्सा बनना चाहते हैं और हम तोड़ने वाले को जो है आगे लगाना और उसको फॉलो करना चाहते हैं? आमीन। थर्ड डे आगाज हो चुका है, तीसरा दिन उसका आगाज हो चुका है। अगर तीसरे दिन में हमारी जिंदगी में लेथार्जी पाई जाएगी और हम जो है स्लीपनेस के अंदर जाएंगे, हम सुस्ती, लापरवाही, काहली का शिकार हो जाएंगे तो फिर हम वो जो है तीसरे दिन का चर्च नहीं कहलाएंगे। और मैं आपको हकीकत बताऊं, यीशु मसीह तीसरे दिन के चर्च को जो है वो लेगा। तीसरे दिन वो क्या करेगा? उठा खड़ा करेगा और हम उसमें क्या करेंगे? जिंदगी बसर करेंगे। ये तीसरे दिन का चर्च का हिस्सा बन गए।
जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप जो है उठाए भी जाएंगे। रैप्चर भी उन्हीं तीसरे दिन लोगों का होगा। इसलिए आज से ये तैयारी करें, आज से क्या करें कि खुदावंद मैं तोड़ने वाले के पीछे पीछे चलूंगा। आमीन। क्या करेंगे? और मैं आने वाले संडेस में, आने वाली जुमेरातों में इस चीज को देखना चाहता हूं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये हमें दिखाना होगा, हमें बताना होगा। आपको मालूम है तो चर्च जो है वो कितना एक्टिव था और उसको कोई रोकने वाला नहीं था। उनको कोई सुस्ती, काहली, उनको कोई काम, कोई काज, यह कोई दबाव। याद रखिए कि थर्ड डे चर्च में कोई दबाव नहीं है और कोई टेंशन नहीं है, वो कोई डिप्रेशन नहीं है और वो बंधा हुआ नहीं है, वो आजाद है, क्योंकि तोड़ने वाले के सबब से वो रिस्टोर्ड है। आमीन। वो तीसरे दिन का चर्च है जिसको उठा खड़ा किया गया है, उस पर कोई बंधन नहीं है, वो ना किसी के बंधन का शिकार है। जो है ये पहले 1000वें साल के अंदर जो है हुआ है, या दूसरे 1000वें साल के अंदर चर्च ने जो कुछ जिंदगी बसर की है सो की है। लेकिन थर्ड चर्च में आपको जो एक्टिव होना होगा, आपको ये दिखाना होगा कि मैं रूहुल कुदुस के एनॉइंटिंग के अंदर हूं, मैं तोड़ने वाले की एनॉइंटिंग का हिस्सा हूं। हालेलुया। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? बाहमी तौर पर किस तरीके से? बाहमी तरीके के साथ जो है आपको जमा होना होगा और आपको यह दिखाना होगा कि I am the part of the apostolic church. Amen. And the part of the third day church. Amen. आपको थर्ड डे चर्च का हिस्सा बनना होगा और इसमें आप मौजज़े देखेंगे, इसमें आप खुदा के बड़े वंडर्स देखेंगे, आप खुदा के बड़े बड़े कामों को वकूअ में होते हुए देखेंगे। क्या आप बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। आप जो है मिरेकल्स देखना चाहते हैं? मैं इसकी तरफ जो है आपको बताऊं, ये मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि खुदा बड़ा काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है, तोड़ने वाला बिल्कुल रेडी है और उससे जो है अपना जो है थोड़ा तेज कर लिया है और वो फाटक तोड़ेगा और वो जो है अपनी खुशखबरी के कलाम के थोड़े से जो है वो मारेगा और बंधन और जुबे टूट जाएंगे। लोग जो बीमारियों, परेशानियों और मुसीबतों का शिकार है वो अपनी सारी मुसीबतों, बीमारियों से जो है वो छूट जाएंगे, क्योंकि एक आर्मी बनने जा रही है जिसके आगे कौन है? बोलिए, तोड़ने वाले का मसा है। आमीन। हम तोड़ने वाले के मसा के साथ जो है वो मूव करना शुरू करें। आप जो है रोजाना अपनी दुआओं में और अपनी मुनाजातों में इसका हिस्सा बनाए। लॉर्ड, मैं तोड़ने वाले की मसा को मांगता हूं, ब्रेकिंग एनॉइंटिंग को चाहता हूं, जिससे जहां मेरे इलाका में, मेरे घर के अंदर क्या हो, ब्रेक थ्रू होना शुरू हो। आमीन। जिन्हों में ब्रेक थ्रू, ब्रेकआउट के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरह खुदा जो है इस तरीके को जो आपकी जिंदगियों के अंदर काम करने के लिए जो है आपको ब्रेक थ्रू देने के लिए जा रहा है। लेकिन इससे पहले आपका माइंड सेट हो कि मुझे रसूली कलीसिया का मैंडेट दिखाना है। आमीन। और ये वो लोग हैं कि जब जो है सुबह है, दोपहर है, शाम है, उनको वैसे ही पाते हैं जैसे वो हैं। ये ऐसे ही है जैसे जो है काली वो यशवा है, जैसे पहले थे वैसे ही जो है वो 85 वर्ष होने के साथ साथ थे। इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है इब्तदाई कलीसिया वाले रसूल कलीसिया बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? बड़े ताबेदारी के साथ रूहुल कुदुस की ताबेदारी में, यीशु मसीह में अपनी शनाख्त को कायम रखते हुए रूहुल कुदुस की पावर के साथ मुलब्बस होकर जो है आगे बढ़िए। और फिर जब आपका कदम ही किसी घर के अंदर टिकेगा या किसी इलाका के अंदर जाएगा, ब्रेक होना शुरू होगा। आमीन। अब आपने जो चीज अपने जहन में बैठानी है, जिसके ऊपर मैं खत्म करने जा रहा हूं, कि मेरा कदम जहां पर भी पड़ेगा, आप सब सुन रहे हैं? आप फिर से सुनिए, मैं फिर से कहूं कि मेरा कदम, मैं चर्च हूं, ठीक है, मैं कलीसिया हूं, मैं उसका बदन हूं, और मेरा पांव जहां पर पड़ेगा क्या होगा? ब्रेक थ्रू होगा। आमीन। वहां पर क्या होगा? वहां पर फाटक टूट जाएगा, यानी दुश्मन के फाटक, जहां पर वो काबिज है, और मैं उसमें से दाखिल हो जाऊंगा।
और फिर मैं उसमें से गुजर जाऊंगा। आप कहां कहां पर देखते हैं, कहां कहां जाते हैं। अब आपको जो है रूह को जीत कर तवेले में जमा कीजिए और एक आर्मी बनाना शुरू करें। और ये आज का आपका टास्क है। बता दीजिए, तीसरा दिन का चर्च मैं हूं। आमीन। मैं रिस्टोर्ड चर्च कहलाता हूं। मैं अपोस्टोलिक चर्च का हिस्सा बन रहा हूं, या बन चुका हूं, या बन जाऊंगा। ये तीनों बातों आप अपनी जिंदगी के अंदर बैठा लीजिए। बन जाऊंगा, बन गया हूं, या बनता जा रहा हूं। जब आपके अंदर ये चीजें पाई जाएंगी, यकीन जानिए आप ब्रेक थ्रू होना शुरू होगा, और फिर ब्रेकर आगे आगे और टूटना शुरू होगा, और बंधन टूटेंगे, जीव टूटेंगे। आप खुद से किसी के ऊपर हाथ रखेंगे और वहां पर बीमारी जाती रहेगी। क्यों? इसलिए कि आप रिस्टोर्ड चर्च हैं, आप अपोस्टोलिक चर्च हैं, आप वो क्रिश्चियन हैं जिसके आगे जो है तोड़ने वाला जाता है, और आप वो अनॉइंटेड हैं जिसके उस तोड़ने वाले के मसा के सबब से यह जिंदगियां आजाद और रहा होती हैं। क्या आप इस काम के लिए अपने आप को पेश करते हैं? क्या आप अपोस्टोलिक चर्च का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और तैयार हों। ऐ खुदावन, मैं रूहों को जीतूंगा, मैं खुदा बढ़ूंगा, फलूंगा और जमीन को मामूरों में हुक्म करूंगा। किस अंदाज में जो है खुशखबरी के कलाम की कुदरत के वसीले से मैं तुझे तोड़ने वाले को अपने सामने रखूंगा। जब तू मेरे आगे तोड़ता हुआ निकलेगा तो फिर इलाके आजाद हो जाएंगे, घर आजाद हो जाएंगे, लोग खुशखबरी के कलाम को सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो तमाम रुकावटें जो खुशखबरी के कलाम और नजात के दरमियान में पाई जाती है, वो सारे बंधन, वो सारे जुए जो खुशखबरी के कलाम और खुशखबरी निजात के दरमियान में पाई जाती हैं, जब आप जो है निकलेंगे, जब अपोस्टोलिक चर्च जो है वो मूव करेगा, जब रसूली कलीसिया मूव करेगी, तो फिर ये सारे बंधन टूट जाएंगे, क्योंकि उनके आगे जब ब्रेकर एनॉइंटिंग है, क्योंकि उनके साथ साथ ब्रेकर एनॉइंटिंग है, और वो उनकी जिंदगियों के वसीले से खुदा जलाली काम करेगा। वहां पर मिरेकल्स होंगे, वहां पर जो है मौजज़ात होंगे, शिफा का काम होगा, निजात का काम होगा, रिहाई का काम होगा, और लोगों की जो है चर्चेस के अंदर जो है बहाली आना शुरू होगी, और लोग कलीसिया के अंदर जमा होना शुरू होंगे। आइए आज से अपने घरों में ये काम करना शुरू करें। खुदावन नजर दुढ़ाना शुरू करें अपने एरिया में, इर्द गिर्द। खुदा आपके वसीले से बड़ा काम करने जा रहा है, उसे दावा दीजिए। होली स्पिरिट की मसा के वसीले से खुदा काम करने जा रहा है। वो खुदा का शुक्र करें। ब्रेकर एनॉइंटिंग ही है जिससे आपको यह बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। चर्च को ब्रेक थ्रू उसी वक्त मिलेगा जब हम रिस्टोर्ड चर्च होंगे, जब हम अपोस्टोलिक अथॉरिटी के अंदर चलेंगे। हालेलुया। खुदावन आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं तेरे फजल के लिए, तेरी मेहरबानी के लिए जो हमारी जिंदगियों के ऊपर है। तूने हमें रिस्टोर किया है खुदा। दुनिया के एतबार से शायद ये वबा या ये एकदम खुदा ये प्रॉब्लम जो दुनिया में चली है कि ये कलीसिया को दबाने के लिए नहीं है खुदावन। हम ये जान चुके हैं कि तू अपनी कलीसिया को बड़े जोर और बड़ी कुदरत के साथ खड़ा करने जा रहा है, और हम इसके लिए तैयार हैं कि खुदा इलाके आज़ाद हो जाए, खुशखबरी कौमों तक पहुंच जाए, खुशखबरी इलाकों तक पहुंच जाए, खुशखबरी का काम कलाम एकदम खुदा इस मुल्क के अंदर इसके कोने कोने तक पहुंच जाए, और लोग खुदा तुझे कबूल करें और तीन निजात को हासिल करें, और एकदम उनके बंधन और जुए टूट जाएं। और इस वक्त भी एकदम खुदा मैं उन तमाम बीमारियों को और अब्लीस के बंधनों को जो जिंदगियों के ऊपर है, यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ता हूं। उस ब्रेकर एनॉइंटिंग के सबब से मैं उन सारे फाटकों को और उन तमाम दाखिल को जहां पर अब्लीस ने कब्जा किया हुआ है, यीशु मसीह के नाम से उसके सारे असरात को खत्म करता हूं। और खुदावंद तेरे लोग आजाद होकर तेरी खिदमत करें और तेरे नाम को ऊंचा करें और सारा जलाल तुझे मिले। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यू आर द अपोस्टोलिक चर्च। आप कौन हैं? रसूली कलीसिया का हिस्सा हैं, आप रसूली कलीसिया हैं। आमीन। और अजीज बहन भाइयों, मैं आपको उभारूंगा कि आप रोजाना
یہ ہے کلیسیا کی ترقی کے لیے بڑھو پھلو ترقی کرو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. اس مائنڈ سیٹ کو اپنی زندگی میں لیں کہ میں خوشخبری کے ذریعے سے جو ہے بادشاہی کو پھیلا سکتا ہوں اور اس دنیا کو مغلوب کر سکتا ہوں. آمین. گاڈ بلیس یو. آسمان اور زمین کے خالق اور مالک کے رحیم خداوند ہم تیرے شکر گزار ہیں اس وقت اور اس موقع کے لیے خداوند ہم سب تیری مقدس ہیکل میں موجود ہیں. خداوند تیرا شکر ہے خداوند اس پاک صبر کے لیے. خداوند یہاں بیٹھی ہر جان کو ہے خداوند ہم برکت دے. خداوند اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیری بے لوث محبت کے لیے. خداوند تو ہم سے پیار کرتا ہے. خداوند ہم خاکسار ہیں. خداوند ہم گنہگار ہیں. خداوند ہم اپنے گناہوں کا اقرار تیرے سامنے کرتے ہیں. خداوند اے خداوند ہمارا ایمان ہے کہ اے خداوند ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے تو ہمیں ایکسیپٹ کرے گا, تو ہمیں معاف کرے گا. اے خداوند ہم تیرے پیار کے لیے تیرے شکر گزار ہیں کہ اے خداوند تو نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان دے دی ہے. خداوند تیرا شکر اور تیری تعریف ہو. اے خداوند ہم جب بھی گرتے ہیں تو نے ہمیں سنبھالا ہے. خداوند اے خداوند ہر مصیبت سے تو نے ہمیں نکالا ہے. خداوند اے خداوند جب اتنے دنوں بعد اے خداوند اتنے مہینوں بعد تیری مقدس ہیکل میں اے خداوند کلیسیا آئی ہے. اے خداوند ہم سب کو بہت برکت ہے. اے خداوند ہمیں اپنے کام کے لیے استعمال کر. اے خداوند اے خداوند تیرے خادم کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند اے خداوند اس نے جو آج کلام کا بیج ہمارے دل میں بویا ہے خداوند وہ 100 کا 100 گنا پھیلا ہے. خداوند آج جہاں بھی لوگ اے خداوند تیرے نام سے اکٹھے ہیں خداوند ان کے ساتھ ہو, ان کو برکت دے. اے خداوند اپنے فرشتوں کے پہروں سے ان کو محفوظ رکھے. خداوند ہم سب کو اپنے بیٹے کی لہو کی باڑ میں محفوظ کرے. خداوند جیسے خیریت سے ہم آئے ہیں خداوند تیرے گھر میں ویسے ہی واپس جائیں. خداوند اے خداوند تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھیں. خداوند ہمارے دل اور دماغ کو پاک صاف کر تاکہ ایسی جگہ بنے جہاں تو رہ سکے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ اس گمراہی کے دور میں تو نے ہمیں چن لیا ہے. خداوند تو نے ہمیں اپنا فرزند بنا لیا ہے. خداوند اب بخش دے کہ اے خداوند ہمیں پاک صاف کر تاکہ ہم اے خداوند تیرے کام کے لیے استعمال ہو سکیں. خداوند ہمیں اپنے کام کے لیے تیار کر. اے خداوند جو بھی اے خداوند تیرے لوگوں نے تیرے دیے میں سے تجھے لوٹایا ہے خداوند وہ تیرے گھر کی عظمت اور بقا کے لیے استعمال ہوا ہے. خداوند اے خداوند تو ہمیں اے خداوند ہمیشہ بخشتا ہے. خداوند تو ہمارا رہنما ہے. خداوند ہم سب کے ساتھ ہو, ہم سب کو بہت برکت ہے. خداوند یسوع مسیح کے مبارک نام میں مانگتے ہیں. آمین. خدا کی اسماعیل ہوئے دعا میں شریک ہوں گے. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں, تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل باپ کی محبت قبول اس کی پاک کی شرکت ہم سب کے ساتھ اور کل مقدسین کے ساتھ ہوگی. گاڈ بلیس یو.